Hey दोस्तों, this is Prashant Kaushal and today I am going to discuss the next topic of the same chapter. The chapter name is Human Capital Formation and the topic is difference between physical and human capital. Okay, we have seen so many topics in the previous videos of the same chapter. Okay, so now we will see the difference between physical and human capital. The first difference is the meaning or definition. It refers to the produced means of production. It refers to the produced means of production. That means physical capital is helping to do the production. It is helping to produce the final goods. So all those things which are helping to produce the final goods, those things will be called as physical capital. Okay, all those things which are supporting to convert all inputs into the output, so those things will be called as physical capital. That is what it refers to, the produced means of production. Now here, human capital, that we already know, it is the stock of skills, knowledge, expertise, ability and education of a nation at a point of time. Okay, human capital is what? It is the stock, okay, which we have already seen in the previous videos. Okay, it is the stock means the total number of people who are having skills, knowledge, expertise, education and ability of a country or of a nation at a particular point of time. Okay, so meaning we already know. Second point, examples of physical capital is given, that is machine, building, land, tools, equipments. Okay, these are the physical capital by which we can make the final good. Okay, for example, this whiteboard is made up with the help of some machines. Okay, so that machine is what? Physical capital. So example of physical capital is what? Machine, building, land, or we can say tools, equipments, plant, etc. Okay, now the example of human capital already there in the definition itself. Example of human capital will be skills, knowledge, experience, expertise, education, ability. Okay, so all these are the examples of human capital. Third difference, it produces tangible goods. Physical capital produces what? Tangible goods. Obviously I have given the example of blackboard. This has been produced by the physical capital, and this board is what? This whiteboard is what? This board is a tangible product. The duster is made by some physical capital, and this duster is a tangible product. So it produces tangible goods. That's it. It increases efficiency. To produce tangible goods. Okay, it is increasing the efficiency of an individual, and that individual is producing the tangible good. Okay, suppose I am a worker in a company. If I am having the skills, then I will be able to produce the tangible goods. Okay, so it is increasing the efficiency. Of the human being, so that human being will be able to produce those tangible goods. Okay, so it is not directly making any tangible good. Human capital is not directly making any tangible good, but it increases the efficiency of the human being. Those human beings are making the tangible goods. Okay, this was the third difference. Fourth one, it can be sold in the market. Physical capital is what? Machine, tools, building. So definitely they are sold in the market. Okay, so all the machines, all the buildings, all the equipments are sold in the market. Okay, here in case of human capital, it cannot be sold in the market. Obviously a doctor having the skills, okay, of some specialized work, so that skill cannot be sold. Okay, a doctor cannot sell his skills in the market. Okay, he cannot sell all his degree and skills in the market, that somebody else will do the doctorate in place of himself. Okay, he cannot sell his skills. It is not possible. But only the services of human capital
can be sold in the market. The doctor is selling his services, okay? He cannot sell his skills from inside, okay? He can only sell his services, he can serve them, and he can get paid by those people, okay? So only the services of human capital can be sold out, okay? सिर्फ सर्विसेज बिकती हैं, ह्यूमन कैपिटल नहीं बेच सकते, स्किल्स को हम बेच नहीं सकते, ओके? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर, ओके? फिजिकल कैपिटल क्या होता है? ऑनर से सेपरेबल होता है। मशीन जो है ऑनर्स है ना, ऑनर मतलब मालिक, मालिक से मशीन तो अलग हो गई ना, मतलब मशीन कहीं पे भी रख सकता है, वो कहीं पे बेच सकता है, कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकता है, तो इट इज सेपरेबल। ऑनर से क्या हो गई? फिजिकल कैपिटल क्या होता है? सेपरेबल होता है। बिल्डिंग अलग है ना, ऑनर अलग, सो डेफिनेटली इट इज सेपरेट फ्रॉम द ऑनर। But in case of human capital, it is inseparable from its owner. Obviously, I am a teacher, so my skills is attached to me inside. Okay, मेरी स्किल तो मेरी इनर क्वालिटीज है ना, तो वो स्किल्स इंसेपरेबल है, वो सेपरेट नहीं हो सकती, मुझसे अलग नहीं हो सकती, ठीक है? इसीलिए तो वो बेच भी नहीं सकते थे हम लोग, ओके? सो दीज ह्यूमन कैपिटल आर इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर, ओके? नेक्स्ट डिफरेंस नंबर 6, it is completely mobile between the countries. It is completely mobile between the countries. Mobile means मूवमेंट, ओके? अब कंप्लीटली मोबाइल मतलब ये कहीं पे भी भेज सकते हैं ना, कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक मशीन में यूरोप से खरीद सकता हूँ, या फिर मैं अपने आप जो बनी हुई मशीन से वो कहीं पे भी बेच भी सकता हूँ। आई कैन सेल एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब, सो इट इज कॉल्ड कंप्लीटली मोबाइल। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना आसान है, बहुत इजी है। नाउ हियर इट इज नॉट कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज। ऑब्वियसली मेरी स्किल्स सारी जगह ले जाना इतना आसान नहीं है ना, मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं या ना जाऊं, ट्रांसफर होना मेरा इट इज नॉट दैट मच इजी, है ना? और सभी लोगों का स्किल्स है ना, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत सारी परमिशंस लगती है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ओके? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट इज नॉट कंप्लीटली मोबाइल, ओके? ये कंप्लीट तरीके से मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, स्किल्स इतनी जल्दी सारी जगह पे नहीं पहुंचाई जा सकती एज कंपेयर टू गुड्स, ओके? सो ह्यूमन कैपिटल इज नॉट कंप्लीटली मोबाइल अक्रॉस द कंट्रीज। नेक्स्ट डिफरेंस नंबर 7, इट क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिजिकल कैपिटल जनरली कौन रखता है? बिजनेसमैन, ओके? वो बिजनेसमैन क्यों बिजनेस खोलते हैं? टू गेट द प्राइवेट बेनिफिट, है ना, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, दे वांट टू अर्न प्रॉफिट, ओके? सो ये कंपनीज के पास ही होता है। फिजिकल कैपिटल इज जनरली हेल्ड विद द कंपनीज, और कंपनीज क्यों काम करती है? टू गेट द प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज व्हाट? प्राइवेट बेनिफिट, ओके? सो फिजिकल कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स। ये सोसाइटी के काम नहीं करते, These are not working for any society work, okay? ये कोई सोशल कॉज के लिए काम नहीं होता है। मशीन्स बिजनेसमैन खरीदता है प्रॉफिट कमाने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट बेनिफिट, ओके? हियर इन केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इट क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट, ओके? यहाँ पर एक बंदा अपनी स्किल्स, अपना नॉलेज, अपना एबिलिटी किसी को दे रहा है ना, यूज अपनी सर्विसेज दे रहा है इनको यूज करके, तो दैट मीन्स ही कैन give his services free of cost, or he can earn from those services, okay? So here social as well as private, both the benefits are there, okay? यहाँ पर दोनों बेनिफिट है ना? जैसे कि हमारी मॉम हमारे लिए बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना बना के दे रही, तो वो भी स्किल्स में आएगा, है ना? मॉम ने बहुत अच्छा खाना बनाया, मगर वही खाना अगर होटल में दिया जाता है या फिर बिजनेसमैन दे रहा है, तो वो होटल में वहां पे प्राइवेट बेनिफिट हो गया, मगर यहाँ पर घर पे जो हमें खाना मिला वो सोशल बेनिफिट, ओके? बात स्किल तो वही थी, स्किल्स वर द सेम, ओके? सो हियर ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। नेक्स्ट डिफरेंस, इट कैन बी बिल्ड थ्रू इंपोर्ट्स। फिजिकल कैपिटल बढ़ाना हो, बिल्ड करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट्स, बाहर से हम खरीद सकते हैं। वी कैन परचेज फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्रीज, ओके? हमारे फिजिकल कैपिटल का स्टॉक बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इट कैन बी बिल्ड थ्रू इंपोर्ट्स। और अगर हमें ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना हो तो क्या होगा? इट कैन बी बिल्ड थ्रू
पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके, ध्यान से सुनिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ह्यूमन कैपिटल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट बनाती है। जनरली पॉलिसीज आर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बनाएगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं एजुकेशन इंप्रूव करेगी, पॉलिसी बनाएगी एजुकेशन के लिए, स्कॉलरशिप देगी, या फिर जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन है, उनके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगी। हेल्थ में सपोर्ट करेगी, हेल्थ भी तो ह्यूमन कैपिटल को सपोर्ट करता है। हेल्थ इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ओके, सो वो लोगों को फ्री में एजुकेशन दे सकती है, स्कॉलरशिप दे सकती है, हेल्थ की सुविधाएं दे सकती हैं। तो ये कहाँ से बन रहा है? ये जो सुविधाएं दे रही है वो पॉलिसी फॉर्म कर रही है ना। एवरी ईयर गवर्नमेंट इज डूइंग सम सर्वे एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे दे मेक सम पॉलिसीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो कहीं ना कहीं वो जो सेक्टर्स में पॉलिसी बना रही है उससे हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल ही बनेगा, है ना। अगर एजुकेशन फ्री है तो गरीब बच्चे भी कुछ ना कुछ पढ़े लिखे बन जाएंगे, कहीं ना कहीं स्किल्ड बन जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल कैन बी बिल्ड थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके, द नेक्स्ट, the last one, it depreciates over time। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? डेप्रिशिएट होता है। आप सबको पता है डेप्रिशिएशन क्या होता है ना। इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ओके, वैल्यू जो असेट्स की वैल्यू वो कम हो जाती है उसको हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं, इट डेप्रिशिएट्स ओवर टाइम ईदर ड्यू टू कांस्टेंट यूज। ऑब्वियस सी बात है, मशीन है, बिल्डिंग है, कांस्टेंट यूज होगा, कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स है, कांस्टेंट यूज होगा, टूल्स है, कांस्टेंट यूज होगा, तो क्या होंगे? वियर एंड टियर होंगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, सो ईदर ड्यू टू कांस्टेंट यूज और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर वो आउटडेटेड हो गए, टेक्नोलॉजी नई आ गई और वो मशीन्स पुरानी है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी वैल्यू तो वैसे ही मार्केट में कम हो जाएगी। ओके, सो फिजिकल कैपिटल इज व्हाट? इट डेप्रिशिएट्स ओवर टाइम, या तो वो टेक्नोलॉजी चेंज हुई उसके कारण या फिर एक्सेसिव यूसेज के कारण। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट्स ओवर टाइम। हियर इन केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सी हियर इट जनरली डेप्रिशिएट्स। ओके, डेप्रिशिएट्स तो होती है बट विद एजिंग, है ना। ह्यूमन बीइंग कैसे डेप्रिशिएट होंगे? घिसते थोड़ी, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं ना। ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं? डेप्रिशिएट होते हैं। कैसे होते हैं? एज पुराने होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, है ना। हम लोग की एज हर साल बढ़ती जाती है, हर साल बर्थडे मनाते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम बूढ़े होते जा रहे हैं। ओके, सो एजिंग, सो ह्यूमन कैपिटल कैसे डेप्रिशिएट होता है? एज बढ़ती जाती है और उसी को उन्होंने क्या बोला? डेप्रिशिएट होता है। बट डेप्रिशिएशन कैन बी रिड्यूस, है ना। डेप्रिशिएशन कम किया जा सकता है ह्यूमन कैपिटल में। कैसे कम किया जा सकता है? विद कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर हम हमारे ऊपर कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करें, किस चीज पे? हेल्थ पे और एजुकेशन पे, कहीं ना कहीं हम यंग रहेंगे, फिट रहेंगे, एफिशिएंट रहेंगे। ओके, सो द होल पॉइंट इज व्हाट? इट जनरली डेप्रिशिएट्स विद एजिंग। हम एज के साथ साथ हम भी पुराने होते जाते हैं, डेप्रिशिएट होते जाते हैं। बट ये डेप्रिशिएशन को हम कहीं ना कहीं इसका रेट हम कम कर सकते हैं, इस डेप्रिशिएशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? बाय कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अपने ऊपर हम एजुकेशन और हेल्थ पे कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम फिट रहेंगे, नॉलेजेबल रहेंगे, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके, सो दिस वाज द होल डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। काइंडली लाइक, share and subscribe my channel. Bye, see you.